So last time we had stopped at this part of biotechnology that was about animal husbandry. अच्छे से याद है animal husbandry, everyone? All these things we have discussed: dairy farming, okay, poultry, followed by apiculture, sericulture, okay, and then pisciculture and fishery. Any other part of animal husbandry do you feel besides all this? और कौन से दूसरे एनिमल्स का हम रेयरिंग करते हैं विच आर इकोनॉमिकली यूजफुल फॉर अस? यस, एक और एग्जांपल बता सकते हैं बिसाइड्स दिस वेयर वी आर यूजिंग? Bees. हाँ, यस. कौन सा बीड है वो? इट इज कॉल्ड एज पर्ल कल्चर. डू यू रिमेम्बर? ऑयस्टर्स, है ना? ऑयस्टर्स एंड पर्ल्स होते हैं, तो उसका भी कल्चरिंग करते हैं. ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स दे कम अंडर एनिमल husbandry, okay, where we are rearing different types of animals, okay, right from the egg stage to the adult stage. In whichever stage those animals are useful in every way. But in सब चीजों में biotechnology कैसे आते हैं? How does biotechnology come into picture in all this? For example, dairy farming. Dairy farming में biotechnology कैसे आते हैं? बोलो. माइक्रोब्स का यूज करके बटर. That will be later. वो हाइब्रिड काउस बनाते हैं. yes, we create hybrids. That is more important. And why do we create hybrids? Animals के hybrids हम क्यों बनाते हैं? मिल्क ज्यादा ऑप्टेंट होगा. Yes, it is ultimately the desired features that we want. Okay, when it is dairy farming, it is about the milk. Okay, when it is about poultry, so it is the eggs and the meat. Like that, for every animal, the desired product obtained is different. तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीन मैनिपुलेशन के थ्रू वी कैन ऑलवेज मेक इट बेटर. बट वही है, लास्ट टाइम भी जैसे मैंने बताया था कि वंस यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन कि सो एंड सो प्रोसेस कैन बी डन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, so only when it has to be justified, that time it has to be done, not just for the sake of beauty or aesthetic purpose or anything like that, and not more than a limit. We should go beyond the nature. वो ज्यादा important है. ठीक है. And as far as these animals are concerned, so there are ethical aspects also कि animals को कैसे treat करते हैं. See, when you are breeding, okay, plants का breeding और animals का breeding दोनों बहुत different है. Plants के breeding में हमें क्या करना होता है कि there are flowers available in which there is androecium and gynoecium. So we can manually go to the flower, pluck out the androecium, dust the pollen grains on the stigma. तो हो गया breeding. For plants we can do that, but for animals the whole concept is totally different. Okay, नहीं? Animals को हम लोग कैसे breeding करवाएंगे? How can we make the two animals mate with each other? We have to leave them जीन्स alone, एक्सचेंज. or else we have to take out the gametes and then fuse it outside. Okay, see, genes exchange तो होगा, वो बाद में होगा when the gametes will meet, but how will the breeding take place? Mating कैसे होगा? For animals it's a totally different thing. Animals में pollination करके नहीं होता है ना. One animal will directly deposit the gamete into the another animal. So that is something now when we have to do it. जैसे cows के केस में हमने बोला कि Australian breed of a cow is bred with a Indian variety of a cow. तो यहाँ का मेल वहाँ का फीमेल या वहाँ का मेल यहाँ का फीमेल, and they are cows. So how do we make them mate with each other? That is a practical aspect. तो उससे रिलेटेड दूसरे कंसर्न्स होते हैं कि एनिमल क्रूएल्टी वाले कभी कभी बोल देते हैं कि वी आर मिस ट्रीटिंग दोज एनिमल्स. एंड डेयरी के केस में क्या हो जाता है कि व्हेन द काउ इज रेडी विद द मिल्क, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज समथिंग ओनली वी आर टेकिंग, बिकॉज नेचुरली वो काउ अगर मिल्क बना रहे तो इट इज फॉर इट्स ओन यंग वन. तो अगर हम लोग उसके यंग वन को मिल्क नहीं देंगे और सारा अगर हम लोग उठा लेंगे तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, है कि नहीं? सेम वे फॉर द पोल्ट्री.
we cannot give them injections and hormones just because they are producing more amount of eggs. That will be again animal cruelty. तो ऐसे बहुत सारे issues आ जाते हैं जिसके ऊपर काफी discussion होते हैं, and there are some or the other governmental regulations that comes into picture which one has to follow. Okay, are you sorry, are you aware about something called PETA? PETA full form पता है? PETA, PETA. नहीं. PETA stands for Protection of Ethical Treatment Towards Animals. That is PETA. कि अगर एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा कोई क्रूएल्टी करने लगे तो उसके अगेंस्ट पेटा एक्ट हो सकता है. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी लाते वक्त दीज आर द थिंग्स वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट ह्यूमन हेल्थ. कि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पर अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कौन से सेक्टर्स में एप्लीकेशन. That is the thing we are seeing over here. Okay, so the next part that we can see is about the human health, and these pictures are showing you somewhat going on in the latest scenario. है कि नहीं, right? इंडिया में अभी जैसे कोविड का वैक्सीन आएगा करके बोल रहे हैं, it will be distributed to the public and all, right? So you can see this live example जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कितना यूजफुल है. करेक्ट, वैक्सीन कौन बना रहे हैं इंडिया में? Tell the name of the institute which is producing the vaccine. Bharat Biotech. And one more. One is Bharat Biotech, the other one is which is the other one very famous? नहीं पढ़ते अपडेट्स न्यूज़पेपर में? Yes, Prachi. The one, is it the one in Pune? Yes. The Bharat Serum Biotech is in Institute. Bangalore. Then in Pune it is the Serum Institute of India. Serum Institute. Correct. Very good. Okay. So ये ऐसे possible institutes हैं, and here there are only people who have expert in biotechnology who are working. Because जब ये COVID-19 का सबसे बड़ा चैलेंज आ गया मैनकाइंड के सामने, ओके, स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड देन स्टार्टेड स्प्रेडिंग एवरीवेयर. तो कितना सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, रिसर्चर्स, अपना प्लांट ह्यूमन पैथोलॉजिस्ट, ओके, एंड डॉक्टर्स, these people were involved, and उनको हम लोग ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स करके नाम दिया था कि they were the ones who were doing their best to control the disease. ओके, तो ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का काफी बड़ा रोल है. आज भी अगर कभी छोटा मोटे बीमारी के लिए हमने क्रोसिन उठा लिया, कॉम्बिफ्लैम ले लिया, always remember that is a person who is a biotechnologist who has worked for it, obviously along with a person who has done pharmacy, but biotechnology comes over there also. और सफेद वाला जो गोली है क्रोसिन या जो भी है वो बनाया किसी ने, तो बनाने का टेक्निक, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हेल्थ, तो उसमें सबसे पहला आता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायग्नोसिस? डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है? टू डायग्नोज अ डिसीज मींस व्हाट? प्राची विल आंसर दिस. यस प्राची, डिसीज को डायग्नोस करने का मतलब क्या है? प्राची से नहीं पता. मृणाल, what do you mean by diagnosing a disease? Pranav has not joined today. Diksha, the literal meaning of the word diagnosis? Yes, Diksha. नहीं पता.
suppose like sometimes due to certain reasons you start getting some symptoms. ठीक है, कोई भी बीमारी का सिम्टम्स आने लगा. सिंपलेस्ट सिम्टम जो बहुत कॉमन है वो है फीवर. ठीक है, फीवर आ गया और यू आर एक्सपीरियंसिंग टायर्डनेस, ओके, और स्टमक अपसेट, ठीक है, या सर्दी वगैरह हो गया, ऐसे कुछ अगर हो गया तो you go to the doctor and you will tell the doctor the symptoms that you are experiencing. Correct? कि डॉक्टर के पास जाकर हम क्या बोलेंगे कि हमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स है. When you go to the doctor directly you don't tell ना कि डॉक्टर मुझे टाइफाइड हो गया, दवाई दे दो करके. You cannot decide कि कौन सा बीमारी है. ठीक है, it is the doctor who will decide it based on the symptoms that you tell. तो जो तुम लोग बताते हो वो है symptoms. And on observing the symptoms, डॉक्टर विल ऑल्सो लुक एट सम सिम्टम्स फ्रॉम हिज साइड. कि जैसे मुंह खोलो करके बोलते हैं, टॉर्च मारते हैं, टंग का कलर देखते हैं, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करते हैं, ओके, आंख में भी टॉर्च मार के देखते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच द डॉक्टर कैन डू. पल्स रेट चेक कर लिए. So based on the symptoms that you tell, based on the signs that the doctor will observe, इन सबको समझने के बाद डॉक्टर रियलाइजेस कि ओके दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिसीज. तो ये जो डिसीजन है डॉक्टर का कि बेस्ड ऑन द सिम्टम्स डॉक्टर विल टेल यू कि तुझे मलेरिया के सिम्टम्स है या तुझे टाइफाइड के सिम्टम्स है. उसको बोलते हैं डायग्नोसिस. कि टू डिसाइड which disease the person is suffering from. And sometimes based on the symptoms even the doctor is not sure कि कौन सा बीमारी हो सकता है. तो वो क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के आओ, ओके, या ऐसा कोई टेस्ट का नाम लिख के देते हैं, ये टेस्ट करा के उसका रिपोर्ट दिखाना. एंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स देन द डॉक्टर विल डायग्नोस. उसको बोलते हैं डायग्नोसिस. ठीक है, सो डायग्नोसिस का मतलब है द डिफरेंट वेज और अप्रोचेस by which the doctor is able to find out which disease the person is suffering from. तो छोटे मोटे बीमारी जो है वो डॉक्टर ऐसे ही बता देते हैं, but there are certain ones for which the doctor needs a confirmation. ओके, तो डॉक्टर अभी इंसान को देख के नहीं बोल सकते कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. उसके लिए ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट बोलेंगे, यूरिन टेस्ट बोलेंगे, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे बताएंगे कि ओके डायबिटीज हुआ है करके. ओके, सिमिलरली हार्ट डिसीज के लिए दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं. समटाइम्स द पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल द सिम्टम्स. ओके, जैसे हार्ट डिसीज हो गया, माइल्ड अटैक और समथिंग लाइक दैट, तो पर्सन विल नॉट गो एंड टेल द डॉक्टर कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक. ओके, तो उसमें क्या होगा, डॉक्टर्स को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज करेंगे या समथिंग लाइक दैट, पर्सन को स्टेबलाइज करके इंस्ट्रूमेंट की तरफ से जो डेटा या रीडिंग्स आएगा बेस्ड ऑन दैट द पर्सन विल डिसाइड. तो ये सारे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ओके, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉज और द डिसीज, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस. ठीक है, नाउ व्हेन देयर आर डिसीजेस ऑफ अ बिगर नेचर लाइक एड्स. एड्स का फुल फॉर्म पता है सबको? एड्स आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर. हाँ, फुल फॉर्म बोलो. मैं बोलूं? बाकी लोग सो गए क्या? स्नेहा यस. सो गई? यस बोल रही है. एड्स का फुल फॉर्म बता स्नेहा. स्नेहा आर यू देयर? बोल. Acquired हम्म at first A का meaning acquired, उसे second इंस्टॉलमेंट में last बोलेगी. immune एक्वायर्ड इम्यूनो. आगे आगे आनंदिता बोल. deficiency syndrome. करेक्ट. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. Anandita, tell me the meaning of the word syndrome. Disease. No, syndrome is not a disease. It is not just a disease. That is the difference between the word syndrome and a disease. Disease का मतलब है Which cannot be cured. not necessary.
There are some diseases which can Symptom? be cured, there are some which cannot be cured, but दोनों को disease ही बोलते हैं. But syndrome is something else. No, symptom भी नहीं. Symptom मतलब something which you experience, something abnormal. Disorder? But syndromes cannot be cured, na sir. Syndromes cannot be cured वो बराबर है, but those which cannot be cured are always called syndrome, वो गलत है. Syndrome का मतलब है a combination of many diseases together, उसको syndrome बोलते हैं. तो एड्स जो होता है उसमें क्या होता है कि a person is suffering from many other diseases. The reason is because एड्स का जो वायरस है HIV that affects or what you can say inactivates या destroys the immune system of our body. अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम के वजह से ही तो हम लोग दूसरे बीमारी से नहीं आसानी से बीमार पड़ते हैं ना. वी आर हेल्दी बिकॉज ऑफ दैट. तो एड्स का वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ही अटैक करता है, बिकॉज ऑफ विच आवर बॉडी बिकम्स एन ओपन इन्विटेशन फॉर एवरी अदर डिसीज. एड्स का एक सिम्टम है कैंसर. देयर इज अ टाइप ऑफ अ कैंसर कॉल्ड काप्सिस सार्कोमा, स्किन कैंसर है, वो एड्स का सिम्टम है. तो दैट्स व्हाई एड्स इज वेरी डेंजरस. और एड्स का देयर इज समथिंग कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. The time period from the entry of the pathogen to the manifestation of the disease, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. कि जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला वायरस हो गया, तो वायरस अपने शरीर में एंटर कर दिया, 2 to 3 days के बाद हमें उसके सिम्टम्स आते हैं. So that is the incubation period. But for a disease like AIDS, okay, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 12 years. So you can imagine कि जब तक सिम्टम्स आते नहीं है तब तक अंदर डैमेज कर चुका होता है. इसलिए एड्स का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है आज तक. It only the only thing is that you should be able to get it detected as early as possible. Okay, तब कुछ पॉसिबल है कि नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स माइट बी लेस, so it is possible to remove it from the system. Okay, तो वो सब पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी के वजह से. There is one test for AIDS. Okay. The test is known as, I'll write it here. It is called as the ELISA test, जो AIDS के लिए. Okay, ELISA का full form है, you can all note it down, enzyme linked immunosorbent assay. इसके डिटेल्स पे नहीं जाते, अब जो समझेगा नहीं, but it is called enzyme linked immunosorbent assay, ELISA. This is the test by which the AIDS can be confirmed. ठीक है, एड्स एचआईवी के पार्टिकल्स हैं कि नहीं वो पता चलते हैं. लाइक दैट देयर आर मेनी अदर टेस्ट अवेलेबल, वो सब में बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल आता है. इवन फॉर दिस लेटेस्ट कोविड-19 दैट इज गोइंग ऑन, ये सिनेरियो तुम लोग ने देखा रहेगा न्यूज़पेपर में, न्यूज में सब, कि हुएवर इज अ सस्पेक्ट, उनके पास से सैंपल कैसे कलेक्शन कर रहे देखो, है कि नहीं. द पर्सन इज वेयरिंग अ पीपी एंड ऑल, करेक्ट, एंड आइदर थ्रू द माउथ और द नोज द स्वैब्स आर कलेक्टेड, एंड उस स्वैप को प्रिजर्व करते हैं उसके जिसका जो भी पर्सन है उसके नाम से, कि जब टेस्टिंग वगैरह होगा लैब में टेस्टिंग करेंगे, आरएनए वगैरह का प्रेजेंस देखेंगे एंड सीक्वेंसिंग करके कंफर्म करेंगे कि दैट आरएनए सीक्वेंस इज मैचिंग विद दैट ऑफ द कोविड-19 वायरस और नॉट, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट द रिपोर्ट विल बी डन कि यस सो एंड सो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और नॉट, एंड कितना माइल्ड है कितना सीरियस है वो भी पता चलता है. तो ये सारी चीजें जो है, जो ये लैब टेस्टिंग सेंटर्स है, ओके, ये सब चीजें बायोटेक्नोलॉजी के वजह से, इवन इसका ट्रीटमेंट भी जो आने वाला है. So these are all the examples that we come to know because of which biotechnology has played a major role in helping the mankind for lot of disease diagnosis as well as treatment. Getting it? Okay, समझा ये पार्ट अच्छे से everybody? Shall I erase this ELISA या अभी रहने देते, बाद में निकालता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. अभी ये थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था ह्यूमन इंसुलिन के बारे में. आर यू अवेयर अबाउट दिस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है बताओ, नॉर्मल फंक्शन. To control the amount of blood sugar. दैट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स फंक्शन, बट उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट.
ओके, ध्यान से सुनो. सी, आई टोल्ड ऑल ऑफ यू वन थिंग. पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके सेल्स होते हैं जिसमें 3 टाइप के सेल्स रहते हैं. डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट? व्हिच आर द Yes. 3 टाइप्स ऑफ हाँ सेल्स? Alpha, beta, gamma, अल्फा, बीटा, हाँ डेल्टा. गामा नहीं. delta. हाँ, हाँ. वो फ्लो में निकल ही जाता है ना गामा. ओके, इट इज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. ठीक है. अल्फा सेल्स secrete a hormone called as ग्लाइकोजन ग्लाइकागोन ग्लाइकोजन. ग्लाइकागोन ग्लाइकोजन इज ग्लाइकागोन द रिजर्व फूड मटेरियल, वो अलग है. ग्लाइकागोन ग्लूकागॉन, इट इज कॉल्ड ओह ग्लूकागॉन. तूने हाइब्रिड बना दिया अभी. Okay, it is called glucagon, that is secreted by alpha cells, and beta cells secrete this insulin. ठीक है. डेल्टा सेल्स वाला अभी नहीं देखते बिकॉज दैट्स अ टोटली डिफरेंट हार्मोन. तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इनको हमने बोला था एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स. द रीजन इज ग्लूकागॉन के वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है एंड इंसुलिन के वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल घटता है. ओके, सो हाउ डज दीज टू प्ले अ रोल? सी, ग्लूकागॉन क्या करेगा कि यू नो वेरी वेल, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजर्व फूड मटेरियल इन एवरी लिविंग सेल. जैसे प्लांट के सेल्स में स्टार्च होता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स के सेल्स में, एनिमल्स के सेल्स में इट इज ग्लाइकोजन. कि whenever during respiration or during digestion, whenever there is an extra surplus amount of the glucose produced, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर के सेल्स में स्टोर कर रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज. तो रिमेंबर दिस वी हैड डिस्कस्ड दिस इन लाइफ प्रोसेस 4, सॉरी लाइफ प्रोसेस 1. ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस करके हमने पॉइंट डिस्कस किया था. डू यू रिमेंबर दैट? Yes. है ना. तो ग्लाइकोजन बना के रखते हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है. तो लिवर के सेल्स में ग्लाइकोजन रहेगा. ग्लूकागॉन क्या करते हैं? इट विल स्टिम्युलेट द लिवर सेल्स to break down that glycogen, convert that into glucose and release that into the blood. ये काम करता है ग्लूकागॉन. इंसुलिन इसका एग्जैक्ट उल्टा काम करेगा. इंसुलिन लिवर के सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा टू टेक अप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, convert that into glycogen and store it in the liver. So in a normal healthy human being, glucagon and insulin, they are both working together. तो ग्लूकागॉन के वजह से लिवर के सेल्स को स्टिमुलेशन मिल रहा है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बना के ब्लड में डालो, एंड इंसुलिन के वजह से स्टिमुलेशन मिल रहा है कि लिवर को ही स्टिमुलेशन मिल रहा है कि ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर ग्लाइकोजन बना के स्टोर करो. सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बोथ, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड. इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन या ओनली बिकॉज ऑफ इंसुलिन. इट इज द फंक्शनिंग ऑफ द बोथ द हार्मोन्स. समझा ये पॉइंट? ओके, बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन एज वेल एज इंसुलिन. बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? द मेजर प्रॉब्लम इज विद द इंसुलिन. इन द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, उनके बीटा सेल्स जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके, दे डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन or produce very less amount of insulin, but on the other hand glucagon is doing its function. तो इसके वजह से there is a imbalance now, because of which the amount of blood glucose level is rising. लिवर को ज्यादा स्टिमुलस ये मिल रहे हैं कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बना के ब्लड में डाल दो, और इंसुलिन वाला स्टिमुलस कम मिल रहा है. सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दैट ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ रहा है. दैट इज डायबिटीज मेलिटस. एंड ग्लूकोज, इवन फॉर अ बॉडी, ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. अगर इफ यू स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर किडनीज, जो एक्सक्रीशन वाला फंक्शन है, हाउ टू फिल्टर द ब्लड एंड मेक द यूरिन, तो उसमें एक पॉइंट आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ओके, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब व्हेन द ब्लड इज बीइंग पास्ड थ्रू द किडनीज, तो उसमें जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को हमेशा चाहिए रहते हैं, वो किडनीज हमेशा अपटेक कर लेते हैं. इट विल टेक इट बैक एंड कीप इट इन द बॉडी. बट इन द केस ऑफ अ डायबिटिक पर्सन, even if the glucose is an important nutrient and passing through the kidneys do not take it back, because समझ जाते हैं कि शरीर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज है.
उससे ज्यादा ग्लूकोज रखना सही नहीं है. दैट इज द रीजन ग्लूकोज इज पास्ड आउट इन द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पर्सन. So that is something the kidneys decide at that time. In every person that happens. कि उस वक्त अपने शरीर में कौन से केमिकल, कौन सा मेटाबोलाइट कम ज्यादा कैसा है, इंक्लूडिंग वाटर, द किडनीज आर एबल टू डू दैट डिसीजन ऑस्मोरेगुलेशन का. दैट्स व्हाई द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन कीप्स ऑन चेंजिंग. तो अभी प्रॉब्लम ये है, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे आ गया इधर, कि दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इन वन ऑफ द सेशंस आई टोल्ड ऑल ऑफ यू कि पहले इंसुलिन का इंजेक्शन एक्सटर्नली देना पड़ता है, एंड फॉर दैट एनिमल्स वेर यूज्ड. कि कैटल या हॉर्स वगैरह या डॉग्स, उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके उसके इंजेक्शंस दिए जाते थे. तो मेनी एनिमल्स यूज्ड टू बी किल्ड और अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. उसका क्वांटिटी कम आता था, कॉस्ट भी ज्यादा होता था. So in biotechnology now what we have done, because of the work of the biotechnologists and the genetic engineers, we are able to find out which gene in our cell. We know very well कि अपने सेल में 46 क्रोमोसोम्स है और 23 पेयर्स. तो कौन से क्रोमोसोम के कौन से जीन का वो फंक्शन है कि जिसके वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनते हैं, वो हमने लोकेट कर लिया. So that gene we have selected from our pancreas cell. उस जीन को निकालकर दूसरा एक बैक्टीरिया लिए, ओके, सिंपली अ बैक्टीरियल डीएनए, ई कोलाई अपना बैक्टीरिया, ठीक है. यू नो वेरी वेल बैक्टीरियल सेल कंटेन्स अ प्लाज्मिड. एक और अलग से डीएनए रहते हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल, ठीक है. दैट इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो बैक्टीरिया के सेल में हमेशा रहते हैं. तो प्लाज्मिड का डीएनए को निकालकर उसका एक छोटा पोर्शन हमने कट किया एंड उसमें हमने इंसुलिन वाला जीन घुसा दिया. तो वी हैव टेकन अ बैक्टीरिया, वी हैव टेकन आउट इट्स प्लाज्मिड, we have taken cut a small portion of the gene from the plasmid. On the other side we have taken a human pancreas cell, we have taken out the human insulin producing gene, and that gene we have put into this bacterial DNA. तो एक हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल हमने बना दिया, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जिसमें सिर्फ इंसुलिन प्रोडक्शन का एक ही जीन है, that we have introduced into another bacteria. ओके, अब वो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. ये ई कोलाई का ही बैक्टीरिया. अब होगा क्या कि व्हेन वी हैव इंसर्टेड दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन अनदर बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया नेचुरली मल्टीप्लाई करेगा. वन बैक्टीरिया विल बिकम थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया. तो व्हेन द बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई इन लार्ज नंबर्स, वो हम लोग करेंगे फर्मेंटेशन टैंक में. We will introduce that bacteria into the tank and we will allow it to multiply. तो मल्टीप्लाई जब करेगा तो बैक्टीरिया के साथ साथ उसका जो डीएनए है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दैट विल आल्सो मल्टीप्लाई इनसाइड एवरी बैक्टीरियम. तो जो हमने एक जीन लेकर एक बैक्टीरिया में डाला था, नाउ वी आर हैविंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैविंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर जीन. एंड उसी बैक्टीरियल सेल के अंदर that same gene will now produce the insulin in that same fermentation tank, because वो जीन उसी में प्रेजेंट है. तो अब उस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसुलिन बन रहे हैं. तो उन बैक्टीरियल सेल्स में से उस इंसुलिन को हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया, स्टोर करके रख दिया एज ह्यूमन इंसुलिन. द केमिकल नेचर ऑफ द इंसुलिन एंड ऑल डज नॉट चेंज, बिकॉज वो उसी जीन से बना रहे हैं. ह्यूमन के ही इंसुलिन जीन से बना रहे, बट नॉट इनसाइड ह्यूमन बीइंग, इनसाइड अ बैक्टीरिया. This was possible because biotechnologists were able to invent this technique. तो इसमें हमें ना एनिमल्स की जरूरत है. We can decide what quantity we want. It can be stored as much time as possible, and because they are produced in large numbers, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को देने के लिए कॉस्ट फैक्टर भी कम हो जाते हैं. And culturing of E. coli is a very easy task. Any microbiologist can do this. तो ऐसे करके हमने ह्यूमन इंसुलिन बना दिए, विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूम्यूलिन. कॉमन जोड़ के ऐसा एक वर्ड बना दिया ह्यूम्यूलिन करके, जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड ह्यूमन इंसुलिन है. तो दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, डायबिटीज का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करके नहीं है. नो पर्सन हैविंग डायबिटीज विल एवर बी फ्री ऑफ डायबिटीज.
द डायबिटीज विल एंड along with that person. ओके, बट लाइफ टाइम उसको बस अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल का बैलेंस बनाए रखना, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहना ताकि ग्लूकोज यूटिलाइज होते जाए. Okay, and as far as possible that person should avoid getting a cut or a wound on any part of the skin because उसमें clotting जल्दी नहीं होगा. Okay, and diet वगैरह का ध्यान रखना है. And along with that, external injections in the form of this insulin has to be taken. But now the insulin can be easily available because of this biotechnology. So that person will be able to survive more and better. अच्छी तरह समझा ये बायोटेक्नोलॉजिकल कैसे प्रोडक्शन किया इंसुलिन का. हाँ. ओके, दिस फ्लो चार्ट, दिस डायग्राम इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट ये समझ में आ जाएगा इसमें अच्छे से. दैट्स द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस. इसका डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में दिया हुआ है, बट पूरा समझेगा नहीं सिर्फ अगर वो करेंगे तो. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. ओके, तो ऐसे स्टेप वाइज करके भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? Yes. एनी डाउट्स? दीक्षा, प्राची, गार्गी, मृणाल? No. ठीक है, ओके फाइन. सो ये दूसरा एग्जांपल था ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट. ओके, अभी वैक्सीन्स. एक काम करो, 1 मिनट, बस 2 मिनट्स आर रिमेनिंग. डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन बैक अगेन, वी विल कंटिन्यू विद दिस. ठीक है.